it was like a long break of 3 weeks, and we had only one interaction, and that was about the political evolution, and it was a sort of introductory class. Today we'll be trying to bit fast, so we'll utilize our time to best of our advantages. Uh, as probably I told you, if I remember or recall correctly, ये जो पाकिस्तान का जो सियासी इर्तिकाई अमल है इसमें पर्सनालिटीज का एक बहुत बड़ा एक रोल है और पर्सनालिटीज की नाकामियां इदारों की नाकामियां जो हैं वो बनकर सामने आती हैं और गवर्नर जनरल्स मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडिंग फादर वो हमारे फाउंडिंग फादर और पहले गवर्नर जनरल और आपको पता है कि ही वाज फ्रॉम अर्बन अर्बन area of Karachi, and primarily they were from Bombay. He was from a business class, merchant class. He was a lawyer by profession. He was a very well organized and very widely respected personality, and he led this struggle of Pakistan movement that culminated into the creation of Pakistan. Then the second Governor General was Khwaja Nazimuddin. Khwaja Nazimuddin जो थे वो he was of Bengali origin. He was from East Pakistan. He was also a very widely respected man. He was a humble man. He was having moderate ideas, and he was also the product of due process. फिर आप जो बाकी पर्सनालिटीज हैं गुलाम मोहम्मद साहब और इस्कंदर मिर्जा primarily Ghulam Muhammad and Iskandar Mirza जो हैं they were strong personalities and both of them had the background of civil service. So these strong personalities promoted or they they uh, they worked for over centralization in Pakistan, in newly created Pakistan. They were having the experience of civil service as well, or that's how पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका इस्टेब्लिशमेंट का एक जो किरदार है सियासत में उसका एक आगाज जो है वो यहाँ से शुरू हुआ पहले सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट का गुलाम मोहम्मद और इस्कंदर मिर्जा की सूरत में और फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो अयूब खान की सूरत में हम देखेंगे आगे Khwaja Nazimuddin had the privilege. He had the privilege to. Khwaja Nazimuddin had the privilege of being the prime minister and being the governor general of the newly created country. Khwaja Nazimuddin, as I told you, was a very humble man, or he was a product of due process. And why he was a product of due process? Because उनका जो असल में ड्यू प्रोसेस की इसलिए कि he was a man who emerged from the local bodies and he was earlier working for the Dhaka municipality as the chairman and he was different than the politicians of Punjab and the politicians of Punjab they were primarily loud in their tone and their actions but Bengali politicians were more submissive
and very down to earth and humble in nature. तो ये एक टेम्परामेंट का फर्क था दोनों विंग के, जो बड़े एथनिक ग्रुप्स थे पंजाबी और बंगालीज का। तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो थे वो एक बड़ी आबादी की नुमाइंदगी कर रहे थे, जिनकी जो हिस्सा था आबादी में वो 54% था। चीफ मिनिस्टर भी रहे और वो मुतहर्रिक रहे। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी में जो आइन के बुनियादी खदोखाल बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी, बेसिक प्रिंसिपल्स की कमेटी, उसमें भी वो इंस्ट्रूमेंटल थे। अयूब खान इनको गुलाम मोहम्मद साहब ने जो है इनको डिसमिस कर दिया, डिसॉल्व कर दिया इनकी गवर्नमेंट को। वो आगे इसका तस्करा आएगा कि वो गुलाम मोहम्मद का जब हम तस्करा करेंगे तो उसमें वो आएगा कि कैसे एक लीगल बैटल जो है कोर्ट में कैसे चली और क्या कोर्ट ने इंसाफ किया या नहीं किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। Ghulam Muhammad Saab was a former civil servant. As I told you, owing to the weaknesses of the politicians, first, ये गौर से सुने, first the civil services, जिसमें ये गुलाम मोहम्मद और इस्कंदर मिर्जा और चौधरी मोहम्मद अली, they took advantage of the weaknesses of the politicians, of the civilian government. The civil service हावी रही governance में, and later in 1958 a floodgate was opened by the military establishment led by Mr. Ayub Khan और General Ayub Khan. तो एक पाकिस्तान में ये ओवर सेंट्रलाइजेशन के बहुत शौकीन थे ये लोग और उसको प्रमोट करते थे। ओवर सेंट्रलाइजेशन, ये पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं आज, ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे है, उसका जो नटशेल ये है कि उसकी जो बुनियादी वजह है वो आपकी ओवर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। ओवर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक हो गया? तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है, प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ डेवोल्यूशन जो है, अथॉरिटी को डिवॉल्व करना, इसकी रियलाइजेशन भी जो आई तो वो आर्टिकल 140A के जरिए, जिसमें हमने लोकल गवर्नेंस को जो है वो उसको एडमिट किया, उसको एक्सेप्ट किया कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है, यानी लोकल गवर्नमेंट जो है, वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। देन आपका जो गुलाम मोहम्मद साहब थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान is not probably in need of strong personalities. Pakistan probably needs strong institutions. If institutions will be like vibrant, strong, and they are public centric, probably दरमियाने कॉम्पिटेंस के लोग भी, दुनिया में जिस तरह होता है, वो आते हैं और ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं और एक ड्राइव करके तो फिर चले जाते हैं, और जो अच्छी ड्राइव कर लेते हैं लोग उनको दोबारा इलेक्ट कर लेते हैं, लोग उनको याद रखते हैं कि वो रिफॉर्म्स करते हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज की प्रॉबेबली जो है वो इतनी ज़रूरत जो है वो अवेलेबल नहीं है, जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज से पाकिस्तान को जो है वो ओवर सेंट्रलाइजेशन मीन्स। अभी किसी ने लिखा है कि मोहम्मद अली बोगरा तक पड़ा है, तो देखें आपने मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। अब मुझे चलने दें, आपको मैं उसको रिवर्स नहीं करना चाहता। मैंने तो पहले पूछा था आप लोगों से, तो अभी इसको चलने दें, फिर अभी आ जाएगा मोहम्मद अली बोगरा। तो गुलाम मोहम्मद जो है वो गुलाम मोहम्मद एक सिविल सर्वेंट थे फॉर्मर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, 5 years का
پلان ان کے وقت میں آیا. لانگ ٹرم پلاننگ واز اے مسنگ لنک. سو ان کے وقت میں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کا جو ہے آغاز ان کے وقت سے ہوا. یہ اچھا ایک کام ہوا. 1954 میں what happened, the assembly tried to change the constitution to establish checks and balances on the governor general's powers, but Ghulam Muhammad dismissed the assembly. اب آپ دیکھیں کہ آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو کانسٹیٹیوشن بنانے کا اختیار ہے یا کانسٹیٹیوشن میں جس کو بنانے کا اختیار ہوگا، سمپل بات یہ ہے لاجیکل، وہ اس میں چینج بھی وہی لا سکیں گے. تو جب انہوں نے ایک ارادے کا اظہار کیا، انٹینٹ کا اظہار کیا کہ ہم انہوں نے ایک ارادے کا اظہار کیا کہ وٹ ویل ڈو، کہ ہم اس گورنر جنرل کے اختیارات میں کچھ کمی لانا چاہتے ہیں. گورنر جنرل صاحب غلام محمد صاحب، جس طرح میں نے کہا اوور سینٹرلائز آپ نے پوچھا بھی کسی نے، اوور سینٹرلائز کا مطلب ہے کہ سب کچھ اپنے پاس رکھنا، یعنی اتھارٹی کو اوور کنسنٹریٹ کر لینا ایک جگہ پہ، کسی ایک شخص پہ یا کسی ایک ادارے میں یا کسی ایک جگہ پہ. اختیارات کا بے جا ارتکاز، ٹھیک ہو کہ نا، اس کو اوور سینٹرلائزیشن کہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اسمبلی کو وہ کانسٹیٹیوشن میں چینجز لانے سے پہلے ہی فارغ کر دیا، ڈسمس کر دیا. اب کیا ہوا کہ اس ایکشن کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، اور جو اسپیکر آف دی اسمبلی تھے، تو کیا ہوا کہ کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو کہا کہ یہ غلط ایکشن جو ہے گورنر جنرل نے لیا ہے. تو رسپانس میں پھر کیا، اس کے ریئیکشن میں کیا ہوا کہ جب اسی فیصلے کو فیڈرل کورٹ میں لے کر گئے تو جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کے تحت جو یہ کہہ دیا کہ چونکہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، تو منطق کا یا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہ غلط کو ہی ہم صحیح قرار دے دیں. غلط کو صحیح قرار دینا نظریہ ضرورت کہلاتا ہے. تو یعنی کام تو غلط ہے لیکن اب ہو گیا ہے، تو اب اس کو اسی طرح چلنے دیں. تو پاکستان کی جوڈیشری نے کئی مرتبہ جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کسٹوڈین ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کی. سو کوشچن ارائزز ہاؤ مینی ٹائمز دے پروو ٹو بی دا کسٹوڈین. پھر یہ بیمار ہو گئے اور پھر انہوں نے چھٹی لے لی، اور پھر ایکٹنگ گورنر جنرل اسکندر مرزا نے ان کو ڈسمس کر دیا، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو فالج ہو گیا. محمد علی بوگرا ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر، اگر میں نے پڑھایا ہے آپ کو، he was of Bengali origin. So a smart move from the establishment of that time was a Bengali replaced a Bengali. کہ ایک خواجہ ناظم الدین کو ریپلیس کرنے والے بھی بوگرا تھے. تو یہ ایک اچھی چال چلی اسٹیبلشمنٹ نے تاکہ بنگالیوں کو انوائے نہ کیا جائے. حالانکہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی ایسی پاورز نہیں تھیں، جو افیکٹو پاورز تھیں وہ گورنر جنرل کی تھیں. تو یہ تھرڈ پرائم منسٹر تھے اور یہ ڈیو پروسیس کی پروڈیوس تھی. ہیلتھ اور فائنانس منسٹر بنے. یہ ایمبیسیڈر جو ہے وہ رہے برما میں، کینیڈا میں اور یو ایس اے میں. گورنر جنرل غلام محمد سلیکٹڈ ہم ٹو ریپلیس خواجہ ناظم الدین. گورنر جنرل جو تھے غلام محمد، انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا. تو اب میں نے جس طرح شاید آپ کو بتایا تھا، اگر یہ پڑھایا ہے کہ پرائم منسٹر تو الیکٹ ہونا چاہیے جمہوریت کے مطابق، لیکن 1935 کا ایکٹ جو تھا وہ امپاور کرتا تھا گورنر جنرل کو کہ وہ کسی کو بھی سلیکٹ کر لے کہ وہ پرائم منسٹر بنا دیا جائے یا اس کو ڈسمس کر دیا جائے. یہ بڑا آٹوکریٹک قسم کا ایک پاورز تھیں جو جنرل مشرف تک جو ہے مختلف صورتوں میں
पाकिस्तान के सदूर ने भी इस्तेमाल की, इसी 1935 के एक्ट से इंस्पिरेशन लेते हुए किसी न किसी तरीके से 8वीं और 17वीं तरमीम में उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। बोगरा फार्मूला गॉट पॉपुलैरिटी, और बोगरा फार्मूला था बाई कैमरल लेजिस्लेचर के दो ऐवान, एक ऐवान होगा कौमी असेंबली का, यानी ये उन्होंने कहा कि प्रपोज किया पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, एथनिक डिवाइड को देखते हुए, कि एक ऐवान होना चाहिए, ऐवान ज़ेरी, यानी जिस तरह आजकल है कौमी असेंबली जो पॉपुलेशन की सतह पे है, जिसकी आबादी ज्यादा होगी उनकी सीटें ज्यादा होंगी उस एथनिक ग्रुप की, और दूसरा बराबरी की सतह पे होगा जिसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी सेनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने दिया कि अगर बलूचिस्तान की आबादी कम है और पंजाब की ज्यादा, तो दोनों के सेनेटर्स जो हैं वो बराबर होंगे। फिर उन्होंने कहा कि प्रोविजन वाज आल्सो put in place that stated that the president of Pakistan were from West Pakistan, then the prime minister would have to be from East Pakistan and vice versa. फिर उन्होंने कहा कि अगर प्रेसिडेंट जो हैं वो एक विंग से होंगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो दूसरे विंग से होंगे, ताकि सेंस ऑफ डिप्रिवेशन जो है उसको डिस्करेज किया जाए। फिर बोगरा का भी यही अंजाम हुआ कि आपने देखा कि ये एक नेचुरल जस्टिस का निज़ाम है। अभी मैं सोच रहा था कि अगर आप पीछे जाएं यहाँ पर तो आप देखें कि गुलाम मोहम्मद जो है उनको गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने डिसमिस किया और इनको जो है अयूब खान ने फारिग किया, ठीक हो गया। और आप देखें कि फिर इनको भी जो है बोगरा को भी मुस्ताफी होना पड़ा मजबूरन जो है, और फिर बाद में उनको यूएसए में सफीर लगाया गया पाकिस्तान का और फिर वजीर खारिजा बनाया गया। चौधरी मोहम्मद अली, एज आई टोल्ड यू इन माय ओपनिंग रिमार्क्स, कि पाकिस्तान की सिविल सर्विस जो है वो किसी ना किसी सूरत में पाकिस्तान के सियासी इर्तिकाई अमल पे हावी रही है, और वो सियासतदानों की इनकॉम्पिटेंस या सिविल सर्वेंट्स की चालाकियों की वजह से, दोनों चीजें हैं, ठीक हो गया। तो उसमें आप देखें कि इस्कंदर मिर्जा, गुलाम मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद अली, आपके सदर गुलाम इसाक खान या फारूक अहमद लगारी, बहुत ज्यादा लोगों के नाम हैं कि जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जो है वो इफेक्टिव रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अली वाज वन ऑफ दोज, ठीक हो गया। अच्छा, फिर he was also, as I told you, a civil servant by profession, और बाद में उनको भी मौका मिला कि वो वजीर आजम बने, और he was also an over ambitious man. सिविल सर्वेंट्स तो वैसे बड़े एम्बिशियस होते हैं, लेकिन ये ओवर एम्बिशियस थे, और इनकी ओवर एम्बिशियस का अंदाजा आप लगा लें। he created a slot for himself, सेक्रेटरी जनरल की स्लॉट इन्होंने बनवाई, एंड टू रीइंफोर्स हिज पोजीशन ही सेट अप प्लानिंग कमेटी, और इन्होंने एक प्लानिंग कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई जिसमें तमाम फेडरल सेक्रेटरीज मेंबर थे, और प्लानिंग कमेटी जो थी जिसको ये हेड कर रहे थे वो ऐसे बिहेव या फंक्शन कर रही थी जैसे प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट फंक्शन कर रही हो। तो सेक्रेटरी जनरल यानी जब अभी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ही वाज फंक्शनिंग लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, और 56 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनके वक्त में आया। हुसैन शहीद सोहरावर्दी, इनका ताल्लुक भी बंगाल से था। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप देखें कि मैंने कहा कि बंगाली लोगों का पाकिस्तान की आबादी में मैक्सिमम तनासुब था, तो आप देखें कि इसमें किसको मौका मिला 1971 तक, 47 से 1971 तक, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। तो ये इनको बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मौका मिला। He was the fifth प्राइम मिनिस्टर, और इनको भी इख्तिलाफात की वजह से जो है इस्कंदर मिर्जा के साथ इनको भी जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो नैरेटिव है ना, मुझे क्यों निकाला, तो ये निकालने वाला जो नैरेटिव है ये पाकिस्तान में
آپ دیکھیں کہ جب سے ابھی ایون یہ حکومت آئی ہے تو روزانہ جو پچھلی حکومت تھی، نئی حکومت ہے یا اس سے آنے والی حکومت ہوگی، پاکستان میں یہ انسٹیبلٹی کا نیریٹو جو ہے یہ کنٹینیو رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آئی چندریگر چندریگر مختصر وقت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور تقریباً 2.25 مہینے. اور جب انٹرم گورنمنٹ تھی 1946 میں، جب عبوری حکومت بنی تھی، تو چندریگر کو تجارت کا قلمدان یا وزارت جو ہے وہ مسلم لیگ کی طرف سے وہ ملی عبوری حکومت میں. ابھی جب پاکستان نہیں بنا تھا یا پارٹیشن ہندوستان کی نہیں ہوئی تھی. آفٹر انڈیپینڈنس assumed portfolio of commerce, منسٹر فار لا. پھر دوبارہ ان کو پاکستان بننے کے بعد یہی پورٹ فولیو ملا، پھر لا کی منسٹری ملی. تو یہ سفارتکاری کا تجربہ بھی رکھتے تھے اور ان کو کیا کہتے ہیں منسٹر کے علاوہ سفارتکاری کا تجربہ، گورنر بھی رہے، 6 پرائم منسٹر رہنے کا اعزاز، اور پھر ان کے حصے میں بھی ریزگنیشن جو ہے دیٹ واز آلسو ہز فیٹ. فیروز خان نون واز a very effective landlord from a landed class of Punjab, and he was a very effective and widely regarded man coming from a very strong feudal family of Punjab. He was educated at Oxford. تو یہ آکسفورڈ پاکستان میں آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان، فاروق احمد لغاری، لیاقت علی خان، بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے آکسفورڈ سے پڑھا اور پاکستان میں اقتدار بھی حاصل کیا انہوں نے. He was educated at Oxford and he was effective to an extent کہ آپ دیکھیں کہ ابھی the United India was ruled by the British Indian سرکار، اور اس دور میں جب غلامی کا دور تھا he worked as High Commissioner of India لنڈن میں، یونائٹیڈ کنگڈم میں. یہ بڑے اعزاز کی اور ایک اچیومنٹ کی بات ہے کہ نون جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر جو ہے ایز کمشنر جو ہے وہ ایک جب غلامی کا دور تھا تو ہندوستان کے ایک آدمی، پنجاب کے ایک آدمی نے وہاں پر نمائندگی کی برٹش انڈین سرکار کی. دین جنا ایز اے یو آر اویئر کہ جنا جو ہے وہ ہمیشہ میرٹ کی بات جو ہے وہ ہمیشہ کرتے تھے اور he always opted for very transparent political deals. تو کمپیٹنس جنا کو بہت اپیل کرتی تھی، تو جنا نے ان کو اپنا انوائے بنایا، اپنا ایلچی بنایا، تاکہ وہ دنیا میں جا کر جو ہے پاکستان کے جو موومنٹ ہے اور نیڈ فار ہوم لینڈ فار دا مسلمس اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے. تو ان کو اس کے علاوہ ہی آلسو ورکڈ ایز چیف منسٹر آف پنجاب ایز ویل. اور یہ بہت کم لوگ ہیں میرے ذہن میں جو 2 لوگ آتے ہیں کہ دوز ہو ورکڈ ایز چیف منسٹر اینڈ دین دے ورکڈ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ایز ویل. تو وہ آپ دیکھیں ظفر اللہ خان جمالی، میاں محمد نواز شریف، they remained chief ministers and they were they had the opportunity to work as a prime minister as well. Foreign minister بھی رہے، تو فارن منسٹر بھی محمد علی بوگرا رہے، ذوالفقار علی بھٹو رہے، اینڈ دین وزیر اعظم بھی بنے، تو یہ فارن منسٹر بھی بنے. سو ہی واز اے ویری گڈ ڈپلومیٹ ایز ویل. اور یہ تقریباً 10 ماہ جو ہے وہ ان کی وزارت عظمیٰ کا دور ہے. اور ان کے دور میں ایک جو اچھا کام یہ ہوا، وہ ٹیریٹری جو ہے وہ ان کے دور میں ایٹ دی کاسٹ آف 3 ملین روپیز دیٹ واز ایڈیڈ. سویلین دور کی ایک اچھی
याद जो है वो समझा जाता है. Iskandar Mirza was the last Governor General and the first President. Last Governor General and the first President. और ये जो इनको जो एक एजाज हासिल था या एक्सपोजर था इनका, had the opportunity of working with both military initial 6 years, and then he was inducted into Indian political service. Indian political service was primarily responsible for administration of the ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी इंडिया में. तो इनका बड़ा अच्छा एक्सपोजर था गवर्नेंस का या सिविल सर्विस का. और he worked as assistant commissioner, deputy commissioner, political agent and defense secretary. He worked as governor East Pakistan as well. और he was the advocate of one unit. अब ये जो वन यूनिट की एडवोकेसी है, इट मीन्स जो मैंने आपको कहा था कि ओवर सेंट्रलाइजेशन, उसका यही मतलब है कि सूबे तोड़ दिए गए और सूबों से एक यूनिट बना दिया गया. ये ओवर सेंट्रलाइजेशन है, वन यूनिट का बनाना. बलूचिस्तान को खत्म कर दिया गया, सूबा सरहद को, सिंध को, पंजाब की बाउंड्रीज खत्म कर दी गई और वन यूनिट को वेस्ट पाकिस्तान का नाम दे दिया. तो वन यूनिट तो ईस्ट पाकिस्तान का, तो वन यूनिट जो है वो आपका वेस्ट पाकिस्तान बन गया. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इनके वक्त में ड्राफ्ट हुआ और जो टाइटल था प्रेसिडेंट का वो रिप्लेस कर दिया गया विद द गवर्नर जनरल. ड्यूरिंग 2 years 4 प्राइम मिनिस्टर्स वर चेंज एंड दैट्स व्हाई नेहरू सेड दैट इतने तो मैं कपड़े तब्दील नहीं करता जितने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो है वो चेंज हो जाते हैं. इट मीन्स दैट ये जो आपके एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी तरफ जो है वो बात हो रही है. ठीक हो गया. तो ये जो उनकी नेहरू ने जो तंज किया, ये बिल्कुल ठीक है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब नेहरू को मरे हुए भी अरसा दराज हो गया, लेकिन पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है वो आज भी उसी तरह कायम है. ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल, ये मैंने आपको बता दिया, ही बिलीव, उस वक्त 15% पांगी की शरह थी, तो उसने कहा कि डेमोक्रेसी इज नॉट सूटेबल सिस्टम. तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये हिमायत कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए. नहीं, इसका ये मतलब लें कि एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी सप्लीमेंट्स और स्ट्रेंथन ईच अदर. ये एक दूसरे को जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं. हम ये कह सकते हैं कि वो उसका ये ख्याल था कि 15% लोग जिस मुल्क में ख्वांदा हों और 85% लोग इलिटरेट हों, तो वहां डेमोक्रेसी क्या सोल्यूशन हो सकती है. ठीक हो गया. 7th of October 1958 imposed martial law, appointed Ayub as martial law administrator. तो 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगाया गया. अयूब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सामने आए. इनिशियली आर्मी वाज रिलक्टेंट और 3 हफ्तों के अंदर अयूब ने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और मिर्जा साहब जो है उनको भगा दिया गया कि वो लंदन जलावतनी इख्तियार कर लें. इस्कंदर मिर्जा हैड 2 वाइफ्स. एक बीबी जो थी इनकी नाहिद बेगम, इनका ताल्लुक ईरान से था. तो ये लंदन में जब जलावतन थे तो लंदन में जलावतनी के दौरान इस्कंदर मिर्जा की मौत वाक़या हुई. तो उन्होंने अप्रोच किया पाकिस्तान में अथॉरिटीज को उसकी तदफीन के लिए. उसकी इजाज़त नहीं मिली और फिर देन उनकी जो ईरानियन वाइफ थी उन्होंने अप्रोच किया शहनशाह ईरान को. तो मशहद में जो है उनको स्टेट प्रोटोकॉल के साथ जो है उनकी तदफीन जो है वो हुई. इससे आप ये अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये पर्सनल हैं.
ये इट्स लाइक एनमिटी, ये कोई सियासी नजरियाती इख्तिलाफ यहाँ पे कम नजर आता है, ये पर्सनल एक एनमिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो अच्छी बात नहीं है जमहूरी एक तरक्की के लिए. अयूब खान was first military ruler and the second president. अयूब खान पहले मिलिट्री के हुक्मरान और दूसरे प्रेसिडेंट थे, पहले सिकंदर मिर्जा थे. फर्स्ट नेटिव कमांडर ऑफ द आर्मी, पहले मुकामी यानी इस मुल्क के पहले मिलिट्री जर्नल जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने. इससे पहले जो थे तो वो अंग्रेज थे, अंग्रेज अपने मुल्क जा रहे थे या रिटायर हो रहे थे. तो सिकंदर मिर्जा, दिलचस्पी की बात यह है, उसको तो भगाया इसने, लंदन चला गया, भगा दिया इसको कि वो जाए और वहां पे उनको जलावतनी पे मजबूर कर दिया. लेकिन यहाँ पे अगर आप हकीकत में देखें तो सिकंदर मिर्जा जो थे वो अयूब खान की प्रमोशन में मुआविन थे. उन्होंने दो इनसे सीनियर जर्नलों को सुपरसीड करके अयूब खान को बना दिया. He was the youngest full general. Ayub Khan was very young when he was a full general and self-appointed field marshal. उन्होंने अपने आप को, यानी फील्ड मार्शल मीन्स जर्नैलों का जर्नैल, जर्नैलों का सरदार, तो उन्होंने अपने आप को फील्ड, जिस तरह चौधरी मोहम्मद अली सेक्रेटरी जनरल बने, तो इसी तरह ये फील्ड मार्शल बने. 1960 में उन्होंने रेफरेंडम करवाए 2 साल बाद. क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई रेफरेंडम? जब आप मिलिट्री के जोर से आए हैं पावर में, तो व्हाई यू वांट टू हैव रेफरेंडम? बिकॉज रेफरेंडम जो है, रेफरेंडम वाज प्रेजेंटेड एज रेफरेंडम वाज ऑप्टेड एज एन ऑल्टरनेट ऑफ इलेक्शंस. 1, एक मुतबादिल के तौर पे इलेक्शंस के. नंबर 2, टू प्रूव देयर पॉपुलैरिटी. ये जो है इम्पोर्टेंट बात है. ठीक हो गया कि रेफरेंडम क्यों करवाए? अपने एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस होता है इनको, अपने आप को एक ताकतवर शख्सियत प्रूव करने के लिए, नामवर शख्सियत, लोगों की हिमायत याफ्ता शख्सियत प्रूव करने के लिए. ठीक हो गया, मजबूत होते हुए भी कमजोर होते हैं, इसलिए जो है अच्छा. देन आपका जो है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिफ्लेक्टेड हिज पर्सनल प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग द फेडरेशन. दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. अब अगर आप पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं या पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो एक रियासत में जो आईन होता है वो लोगों की या फेडरेशन की जो जरूरियात होती हैं उसके मुताबिक होना चाहिए. लेकिन अयूब खान ने क्या किया कि उन्होंने आईन को जो है वो अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस के ताबे बनाने की कोशिश की. ऑब्वियसली व्हेन यू हैव सेल्फ इंटरेस्ट, सो द मोमेंट दैट पर्सनालिटी लीव, वो सिस्टम भी रोल हो जाएगा. और यही हुआ, अयूब खान के जाते ही वो सिस्टम भी जो है वो रोल कर गया. 7 बजे ब्रेक लेंगे, 7 बजे नमाज 7 बजे मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं, तो 7 o'clock we do that. Ayub Khan was Ayub Khan, though he was a military general, but a good part of his personality was he was very enthusiastic about social development, economic development. Or Ayub Khan was also very keen about the women's empowerment. And Ayub Khan wanted कि जो ख़वातीन हैं इनकी एम्पावरमेंट जो है वो की जाए. ठीक हो गया, इनकी एम्पावरमेंट जो है वो की जाए. क्यों? वो देखें, आज से 60 साल पहले जब ये मुस्लिम फैमिली लॉ आया,
थ्रू एन ऑर्डिनेंस। तो असल जो मकसद था, हालांकि वो एक फौजी थे, एक पश्तून ट्राइब से ताल्लुक था और एक कदामत पसंद घराने से ताल्लुक था, लेकिन अयूब खान एक रोशन ख्याल आदमी थे औरत की एम्पावरमेंट के हवाले से। क्योंकि आज भी 2020 में भी अगर रूरल एरियाज में आप चले जाएं तो औरत इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली is dependent on the male counterparts, like on fathers, husbands, और ब्रदर्स वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये कहा कि एक औरत को जब तक हम एहतराम की नजर से, तो एक सिंबॉलिक जेस्चर था। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम फैमिली लॉ में ये उन्होंने डाला कि अगर कोई एक से ज्यादा शादी करना चाहता है तो कंसेंट ऑफ द करंट वाइफ जो था, दैट वाज मैंडेटरी फॉर द सेकंड मैरिज। ठीक हो गया। तो आज भी कोई नहीं पूछता, लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज एक औरत को एक उस वक्त के एक रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, तो शायद सोसाइटी में कहीं ना कहीं इसका आगाज जो है वो हो जाए। फिर देन खानगी झगड़े जो होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान में, या फैमिली डिस्प्यूट्स, ये भी एक कॉमन इशू है हमारी सोसाइटी में। तो उन्होंने कहा कि इफ देयर इज एनी फैमिली डिस्प्यूट्स जो मियाँ बीवी के दरमियान में या फैमिलीज के दरमियान में, तो वो आर्बिट्रेशन काउंसिल्स जो गली कूचों में बनी थी, सालिसी की जो काउंसिल बनी थी, उसमें जो है उसको वहां पर ले जाया जाए, ना कि उसको थाने कचहरी में ले जाकर तो एक दुश्मनी में जो है कन्वर्ट किया जाए। दिस वाज आल्सो गुड कि लोग उस गली मोहल्ले में जो मौलवी होता है, जो चौधरी होता है, या पंचायत होती है, जरगा होता है, तो वो उस लड़के लड़की को समझा देते हैं, अमूमन सुलह सफाई जो है हो जाती है। लेकिन जब कोई औरत या कोई मर्द किसी मसले को अदालत में लेकर जाएंगे हमारी देहाती सोसाइटी में, तो वो फैमिलीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, वो उस फैमिलीज के लिए लोग ताने देते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब गली कूचे में अपने लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, और वो अमूमन मामला जो है वो हल हो जाता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन्होंने करवाए और उसमें फातिमा जिन्ना जो थी उन्होंने कंटेस्ट किया, और फातिमा जिन्ना, लोग ये कहते हैं और किताबों में ये पढ़ा और बुजुर्गों ये इसे सुना कि फातिमा जिन्ना एक्चुअली prevailed. She was the popular personality. Lekin Ayub Khan was an autocratic ruler, so he enjoys the support of America. He enjoyed the support of GHQ, and he was enjoying the support of the his local bodies, councillors, जो BD system था, basic Democrats. तो उसकी वजह से जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने 64% वोट लेके हम कामयाब हो गया हूँ। बेसिक डेमोक्रेट्स जो थे वो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती थी अयूब खान के सिस्टम को। और बेसिक डेमोक्रेसी मींस कि अयूब खान का जो सिस्टम था गवर्नेंस का, दैट वाज इरेक्टेड ऑन, दैट वाज फैब्रिकेटेड ऑन द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी। अयूब खान ये कहता था कि उसका ये फिलॉसफी थी कि जब तक बुनियादी जमहूरियतें नहीं होंगी तब तक जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकेगी। बेसिक डेमोक्रेसी, ये लोकल गवर्नमेंट जब तक नहीं होगी तो ऊपर जो है वो इदारे उसके ऊपर फिर तामीर किए जाएंगे और असली जमहूरियत जो है, जिसको आप सूबाई और विफाकी हुकूमतें कहेंगे, वो आ जाएगी। तो ये 80,000 काउंसलर्स आप समझें बेसिक डेमोक्रेट्स जो मौजूद थे, और बाद में उनकी तादाद को बढ़ा दिया गया। 40,000 वेस्ट पाकिस्तान में थे, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान में थे, बाद में उनकी तादाद को 60,000 कर दिया गया। अयूब खान की जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उसमें जो सिग्निफिकेंट बात थी, एक तो इट वाज वेरी क्लियर, रिटन ऑन द वॉल, आंखें बंद करके हमें एज्यूम कर लेना चाहिए कि जो पॉलिसी थी वो प्राइमरीली प्रो यूएस थी, और जिस तरह हमारी खासतौर पे मिलिट्री या डेमोक्रेटिक। ये असल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी चाहे मिलिट्री की गवर्नमेंट हो, चाहे
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हों, हमारी पॉलिसीज अमूमन प्रो अमेरिकन होती हैं, प्रो यूएस होती हैं, ठीक हो गया। उसकी बहुत सी वजूहत है। इनके वक्त में फॉरेन पॉलिसी में एक जो बड़ा माइलस्टोन है, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास मुआहदा। इट रिजल्टेड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स वाटर। तो 3 ईस्टर्न रिवर के ऊपर उनको और 3 रिवर्स जो है वेस्टर्न, वो पाकिस्तान को जो हक दिया गया, it was carried out with the help of World Bank और ग्रेट पावर्स लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस और इस तरह के ममालिक जो है इसमें इंस्ट्रूमेंटल थे। तो इंडिया, इससे पहले इंडिया का और पाकिस्तान का इस पे तनाज़ा होता था, और आज इसके ऊपर एक इंडस वाटर कमीशन है, जो दोनों ममालिक के दरमियान में जो तनाज़े होते हैं पानी में, वो वहाँ पे जो है उस कमीशन के मीटिंग्स होती हैं दोनों ममालिक में, और वो उसको वहाँ पर तय किया जाता है, वर्कआउट करते हैं। Tashkent Accord. After the war with India, Ayub signed a pact at Tashkent. Shastri and Ayub signed this accord. और इसके से ये हुआ कि पोस्ट 1965 कि कैसे रिजम्पशन होगी ताल्लुकात की, तो ये स्पॉन्सर किया फॉर्मर यूएसएसआर ने। यहाँ मुआहदा तो हो गया, लेकिन एक सैड इंसिडेंट हुआ, एंड दैट वाज द डेथ ऑफ नेहरू, सॉरी शास्त्री, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और उनकी ये फिजिकल डेथ थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अयूब खान की सियासी डेथ साबित हुई। सियासी डेथ इसलिए साबित हुई कि अपॉर्चुनिटी मिल गई उनके ओपोनेंट्स को। मेरी मुराद भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया कि इससे जो है वो कश्मीर का इशू जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। नमाज पढ़ लेते हैं, एंड देन वील मीट आफ्टर अ वाइल। ठीक हो गया, थैंक यू। अयूब खान साहब जो हैं वो प्राइमरीली, दो ही वाज अ मैन इन यूनिफॉर्म, लेकिन उसके जो कुछ इनिशिएटिव्स थे या जो थॉट प्रोसेस था, वो एक एनलाइटेंड आदमी हम उनको कह सकते हैं। और आप देखें कि स्पार्को जैसा इदारा, स्पेस, उस वक्त 60s में, यानी आज से 60 इयर्स अगो, उन्होंने स्पार्को बनाने में जो है उसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान में रेडियो जो है उसकी नशरियात हर जगह नहीं सुनी जाती थी, तो रेडियो की जो नशरियात हैं उसको प्रमोट करने के लिए रेडियो के सिग्नल्स को एक्सपेंड किया पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान में टेलीविजन नहीं था। टेलीविजन को जो इंट्रोड्यूस किया अयूब खान साहब ने, वो इंट्रोड्यूस किया लाहौर से, फ्रॉम लाहौर सेंटर, और इट वाज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन 1964। तो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है उनके विजन को कि ही वांटेड टू डेवलप सोशली और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेगा प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक मेगा प्रोजेक्ट्स, स्टेट ओन्ड बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उस वक्त स्टेट ओन्ड ज्यादा थी दुनिया में, तो ये एक ट्रेंड था, और वो उन्होंने उसको के ऊपर काम किया। फिर उन्होंने ये क्या कहते हैं, इस्लामाबाद को एज अ कैपिटल जो है उसको, इस्लामाबाद को एज अ कैपिटल उसको शिफ्ट करने में, उसमें भी काफी मुतहर्रिक किरदार जो है वो अदा किया। तो अयूब खान की बहुत सी खिदमात हैं, और इन लोगों को फिर एक और एक वो भी होता है, एक शौक होता है अपनी प्रोजेक्शन का, अपनी प्रोजेक्शन का एक शौक होता है। और जितने भी मिलिट्री के प्रेसिडेंट्स रहे,
ملٹری کے جو پریزیڈنٹس رہے وہ اپنی پروجیکشن جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو رولنگ کلاس ہے ان سے زیادہ ہوتا ہے غالباً وہ انسیکیورٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ عدم تحفظ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو اگر ٹرو ڈیموکریسی میں ٹھیک ہے امیج بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ سرٹنٹی ضرورت ہوتی ہے کہ اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز میں کہ دے انجوائے دی سپورٹ آف 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 پیپل، کامن پیپل. سو اس لیے وہ اگر لیٹ سے کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر پچھلے یا ابھی کے یا آنے والے وہ لوگوں کی سپورٹ ہے ان کے پاس، اور آپ کوئی بھی حربے اپنا لیں فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا ٹیلی ویژن پہ یا ٹی وی چینلز پہ، تو اس سے اتنا فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا تب تک کہ جب تک وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ اپنی یوز نہ کریں، سپورٹ جو ہے پاپولر سپورٹ میں ریڈکشن نہ ہو. سو میں نے جس طرح کہا انسیکیورٹیز پاکستان میں بہت زیادہ رہتی ہیں، اور ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ میں کہتا ہوں کہ بجائے کہ ہم پاکستان کے جو حکمران ہیں پچھلے 70 سالوں میں وہ اپنی انرجیز آج کل زیادہ تر سوشل میڈیا پہ فوکسڈ ہوتی ہیں. اگر وہ آپ کراچی کا سیلاب دیکھ لیں تو کوئی آپ کو والنٹیئرزم نظر آئی کسی کی طرف سے؟ آپ کسی کی حمایت نہ کریں. تو اگر آپ دیکھیں کیا میڈیا سے لے کے اور کوئی بھی حکومتیں چاہے مقامی ہیں چاہے وفاقی ہیں چاہے صوبائی ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا انہوں نے اس کو والنٹیئرزم کو سپورٹ کیا، ریلیف ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا، کلیکٹیوزم؟ یہ تو اپرچونٹی ہے اکٹھا ہونے کے لیے جس میں ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں. کیا اگر کراچی کے لوگ نکلیں تو کیا سچویشن چند ہفتوں میں بدل نہیں سکتی؟ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنا ارد گرد تو صاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم صرف پولیٹیکل مائلیج گین کرتے ہیں. تو یہ جو فوکس ہے انڈیو فوکس آن میڈیا مڈ سلنگنگ، یہ جو انہوں نے پھر اس کے اوپر کافی فوکس کیا اور اپنا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ یعنی ترقی کا اشرہ منایا گیا. اور اس وقت جو اویلیبل مینس تھے، ریڈیو پاکستان، ٹی وی یعنی پی ٹی وی تھا، اور جو آپ کا یہ نیشنل سینٹرز تھے جس طرح امریکن سینٹر ہے نا، یا خانہ فرنگ ہے برٹش کاؤنسل، اس طرح پاکستان میں نیشنل سینٹرز ہوتے تھے جو بھی بند ہو گئے ہیں پاکستان میں. تو اس کو امپلائی کیا گیا، اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی پروجیکشن کے لیے جو ہے اس کو یوز کیا جائے. اور ایوب خان جس طرح میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا ایک ویژن تھا، اور وہ سوشل امپاورمنٹ کا ایک ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ تھا. اور یہ بہت ایک 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 بہت ان کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سوشل امپاورمنٹ جو ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتی سوسائٹی میں جب تک ہم پاپولیشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو فیملی پلاننگ جو ہے اس وقت تو آج سے 60 سال پہلے تو کوئی اس مسئلے پر جو ہے وہ کوئی بولتا نہیں تھا، آج بھی کوئی نہیں بولتا. اور آج پاکستان 6 نہیں 5th لارجسٹ پاپولیشن ہو گئی ہے. تو اس خطے میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایک فیملی پلاننگ کا جو ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ اور ایک علیحدہ ایک انیشیٹو جو ہے وہ لے کر آئے. ٹھیک ہو گیا؟
تو یہ ایک آپ دیکھیں کہ ایوب خان جیسا آدمی جو ہے، جو تعلق جن کا جو ہے وہ تھا ملٹری سے، لیکن انہوں نے ایک زیادہ اچھا ویژن جو ہے وہ ایک دیا کہ انٹل انلیس آپ آبادی کا کنٹرول اگر نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے وہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ حل جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. لیکن پاکستان میں all of you are aware that going to the uh, non-cooperative attitude of certain stakeholders, like within the family, there is no talk about it. Curriculum is totally silent. Clergy is opposing it. Media is totally silent. It is not on the media's agenda. So یہ ایوب خان کی کم از کم ایک روشن خیالی جو میں اس کو کہوں گا اس کو ضرور ریفلیکٹ کرتا ہے. یحییٰ خان صاحب جو تھے وہ ہی واز تھرڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور یحییٰ خان صاحب جو تھے وہ آپ دیکھیں کہ یحییٰ خان صاحب جو تھے وہ ہی واز ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جو ہے he was very like at a prestigious assignment at the time of partition. آرمی میں کمانڈ کے علاوہ جو انسٹرکشنل اسائنمنٹس ہوتی ہیں جس کو ڈی ایس کہتے ہیں آج کل، ڈائریکٹنگ اسٹاف، تو وہ ان کا ایک بہت اچھا ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے. اور آزادی کے وقت جو ہے یہ اسٹاف کالج کوئٹہ میں جو ہے وہ وہاں پر پوسٹڈ تھے. اینڈ ایٹ دی ایج آف 34 he was promoted as brigadier general. یعنی یہ بہت ینگ ایج ہے، آج کل 34 سال کی عمر میں کبھی بھی نہیں بنتا. لیکن اس وقت چونکہ آپ کو پتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک اسپیس خالی ہو رہی تھی، تو اسپیس خالی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. What happened on the only transition of our history from military to military صرف ایک مرتبہ یہ ٹرانزیشن ہوئی. اینڈ دیٹ واز اللہ کرے کہ یہ ایک ہی مرتبہ رہے. اور وہ جو ہے 1969 میں ہوئی، اور وہ ایوب سے یحییٰ صاحب کے درمیان میں ہوئی. ایوب سے یحییٰ صاحب کے درمیان میں ہوئی، اور وہ 25 مارچ 1969 کو ہوئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک یونیک ٹرانزیشن تھی. یہ ایک ہی مرتبہ اس طرح ہوا. جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو. لیکن اس میں ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ایک یونیک ٹرانزیشن اس طرح بھی تھی. From military to military only happened once, but Yahya was not aspirant like General Muhammad Ziaul Haq or Ayub Khan or Mr. Pervez Musharraf. He was he was requested by by Ayub Khan to hold power and to administer the country. What sort of challenges were confronted by Mr. Yahya? The one was to transform the one-man rule into democratic state. ایک تو یہ تھا کہ ون مین رول کو جو ہے وہ اس کو ون مین رول تھا نا ایوب خان کا اور پھر یحییٰ خان کا، تو اس کو کیسے ایک جمہوری تسلسل میں کنورٹ ہو، اس کے لیے کیا ضروری تھا. اگر آپ ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں لانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الیکشنز کروانے پڑیں گے. He had to perform multiple roles اور he had to draft the provisional constitution تو نہیں تھا. 62 والا تو ختم ہو گیا ایوب خان کے ساتھ. تو اب ایک اور جو کام اس کو کرنا تھا کہ اب وہ سسٹم کو جو ہے وہ کیسے چلائیں. ٹھیک ہو گیا. سسٹم کو کیسے جو ہے وہ چلائیں، اس کے لیے انہوں نے وہ LFO جو ہے وہ لے کر آئے، لیگل فریم ورک آرڈر، یعنی جس کو عارضی آئین جو ہے کہتے ہیں، کہ کیسے یہ جو
جز وقتی اس کی ایک صدارت کا وقت ہے اس کو وہ کیسے جو ہے وہ اس صدارت کو وہ کیسے چلاتے. He had to resolve the one unit question as well. ون یونٹ کوشچن کیا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1955 میں جو ہے وہ 1955 میں جو ہے وہ ایک منٹ مجھے دے دیں میں ایک میسج کر لوں. ون یونٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. سو اس پہ جو تھے وہ اس پہ جو ہے اس پہ صوبے جو تھے وہ خوش نہیں تھے. دی provinces were not happy with such dispensation. تو انہوں نے کہا کہ بھی ہماری تو جو شناخت تھی ایز پنجابی, ایز پشتون, ایز بلوچ اور سندھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور بنگالیوں کی تو انٹیکٹ ہے کیونکہ ان کا تو اپنا ون یونٹ ہے. تو انہوں نے ون یونٹ کو, اب یہ کوشچن تو ایوب خان کے سامنے بھی تھا کہ اس کو ریزالو کرے. ایوب خان ون وے کمیونیکیشن پہ بلیو کرتے تھے, یا probably believed on two way communication اور his communication channels were better. So ایوب خان تو سنتا ہی کسی کی نہیں تھا. یہ مطالبہ تو انہوں نے ان سے بھی کرتے تھے پولیٹیشین اس وقت کے. تو یحییٰ خان نے کہا کہ بھئی اگر یہ خوش نہیں ہے پنجابی اور سندھی اور بلوچ اور پٹھان, تو آپ ون یونٹ کو ختم کر دیں اور پروونشل سٹیٹس بحال کر دیں. تو what he did through presidential order, he restored the provincial boundaries. He was the caretaker head of the country. اس نے کہا کہ میں جز وقتی ریاست کا سربراہ ہوں یا ملک کا سربراہ ہوں یا حکومت کا سربراہ ہوں, not like other military generals who assumed power like Zia and Mr. Ayyub or Mr. Musharraf. He had to satisfy the frustration of the eastern wing. جو فرسٹریشن تھی ایسٹرن ونگ کی وہ انہوں نے اس کو پیسیفائی کرنا تھا اور وہ نہیں کر سکے کیونکہ اٹ واز ٹو لیٹ. اٹ واز ٹو لیٹ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان سے جو ہے ایک انہوں نے کوشش کی, لیکن اب یہ بہت مشکل تھا ان کے لیے کہ وہ ان کی فرسٹریشن کو میں کوئی ایز جو ہے وہ پیدا کرتے, کیونکہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا 1947 سے لے کے 1969 تک اس کا ذمہ دار تو یحییٰ خان نہیں تھے. اس کے ذمہ دار تو 1947 سے لے کر 1969 تک کے لوگ تھے, اور یحییٰ خان کا دور 1969 سے 71 تک تھا. تو ہم الزام جو دیں گے وہ تو اس کو 69 سے 71 تک دیں گے, جو 47 سے لے کے 69 تک کے جو غلطیاں تھیں. تو یحییٰ خان کے لیے مشکل ٹاسک جو تھا وہ یہی تھا, لیکن اب بہت لیٹ ہو چکے تھے. He had to dissolve he dissolved the one unit and restored the pre-1955 provinces of West Pakistan. تو انہوں نے اس کو ریسٹور کیا صوبوں کو پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے. ایز آئی ٹولڈ یو, ون مین ون ووٹ ایڈلٹ فرینچائز کا جو کانسیپٹ ہے وہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں جو انٹروڈیوس کیا آپ کے جناب ایوب خان صاحب نے, سوری یحییٰ خان صاحب نے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کسی اور نے نہیں انٹروڈیوس کیا, یہ جناب یحییٰ خان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بالغ رہی دہی کا حق جو ہے وہ ان کو دیا. اور
he doubled the quota for Bengalis in defense services. ये देखे ना पीछे मैंने आपको कहा कि फ्रस्ट्रेशन उनकी ईस्ट पाकिस्तान की कम करे, तो वो किसके जरिए कि उसने कहा चलो, क्योंकि ज्यादा नौकरियां जो होती हैं वो तो फौज में डिफेंस में होती हैं और महकमों में तो थोड़ी थोड़ी नौकरियां होती हैं, फौज में तो सैकड़ों और हजारों लोग होते हैं। तो उसने कोशिश की कि उसको बंगालियों का कोटा डबल कर दे, बट इट वाज टू लेट। ये अब बहुत देर जो है वो हो चुकी थी और अब बंगालीज प्रोबेबली अब ये 1970 के हम करीब पहुंच चुके थे। तो अब पाकिस्तान टूटने में चंद महीने जो हैं वो गालिबन बाकी थे, ठीक हो गया। और उनके वक्त में जो एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हुआ, that was restoration of the diplomatic linkages between China and USA, जिनका आपस में कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं थे। तो ये काम जो है वो इनके वक्त में हुआ। ये सेकंड मार्शल लॉ था पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा, LFO यानी आर्जी आइन के कैसे होगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, कैंडिडेट्स की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे एक्ट करेंगी वगैरह वगैरह, ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होगी, ये सारी चीजें LFO में लिखी हुई थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 7th of December 1970। इलेक्शंस फर्स्ट टाइम ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस हुए और डिले ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो यहाँ से याहिया खान साहब का जो एक डिस्क्रेडिट है एक्चुअल, बिकॉज याहिया ने लिखा हुआ था LFO में कि कितने दिनों में पार्लियामेंट का इजलास, जिसकी अक्सरियत होगी तो उसको आपको पावर ट्रांसफर करनी है, बट याहिया failed to do so, so that's why he had to face this criticism till क़यामत। सियासी हक़ाइक़ क्या थे? The political realities। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग almost won all seats in East Pakistan, but none in West Pakistan। वेस्ट पाकिस्तान में कोई, इसका मतलब है कि ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जो है वो बंगालियों की या ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की पार्टी बनकर जो है वो उभरी, और वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और अवामी लीग के 162 सीटें आई और PPP ने 88 सीटें ली, और बकाया सीटें जो वेस्ट पाकिस्तान में थी वो JUI और नेशनल अवामी पार्टी नैब ने बलूचिस्तान और सूबा सरहद में जीती। अब what was the flaw of Yahya's political strategy? Yahya failed to effect a compromise, and and in response you will be earning foreign exchange, आप डॉलर्स कमाएंगे, आप रियाल कमाएंगे, और आप जो है वो you will क्या कहते हैं, you will you will send it to Pakistan, and आज पाकिस्तान में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं ये एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर की वजह से आते हैं, जो हमें डेट का जो डेट सर्विसिंग में, कर्जे उतारने में और ऑयल के इंपोर्ट में और डिफेंस के जो इक्विपमेंट के इंपोर्ट्स में उसमें हमें मुआविन साबित होते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो बुरा डिसीजन था वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स था कि आप सेठ हैं और आपका बैंक है, अभी बैंक आपका है, तो उसको क्या कर दिया कि भुट्टो साहब ने 1974 में, भुट्टो साहब apparently was a Democrat, but probably he was inspired of socialism as well, कम्युनिस्ट ब्लॉक से भी इंटरेस्ट थे। और उस वक्त दुनिया में इन दो सरमायादाराना निज़ाम और इश्तराकियत का जो निज़ाम था तो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। इट eroded the confidence of investors in Pakistani state, तो इससे लोगों का जो एतमाद है वो मजरूह हुआ। तक आप उसको रियासत के तौर पे तस्लीम तो उसको तस्लीम किया। भुट्टो के वक्त में फॉरेन पॉलिसी वाज वेरी बैलेंस्ड, बहुत बेहतर थी आजकल के मुकाबले।
चाइना और मुस्लिम ब्लॉक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। भुट्टो साहब से एक सियासी गलती हुई और वो गलती पाकिस्तान में फिर किसी ने नहीं की, एंड वो थी वक्त से पहले इलेक्शंस करवाना। तो वक्त से पहले जो इलेक्शंस उन्होंने करवाए वो उनको उसकी प्राइस पे करनी पड़ी। ऑपोजिशन ने मुतालबा किया कि इलेक्शंस जो हैं वो करवाए गए, तो इलेक्शंस करवाए गए और भुट्टो साहब का ये ओवर कॉन्फिडेंस को शो करता था। तो भुट्टो साहब ने जब अपने मुशीरों से पूछा कि मेरी पॉपुलैरिटी कैसे है, तो उन्होंने उसको गलत रिपोर्टें दी बढ़ा चढ़ा के कि आप बहुत पॉपुलर है। भुट्टो साहब का तकब्बुर ज्यादा था, तो भुट्टो साहब ने इलेक्शन करवा दिए। जब इलेक्शन करवा दिए तो एक दिन जब कौमी असेंबली का रिजल्ट आया तो वो अनाउंस ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने मेजोरिटी सीटें जीती हैं। पीएन ने जो उसके खिलाफ 9 पार्टियों का अलायंस बना था, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कहा ये रिग्ड हुए हैं। तो उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन जो था प्रोविंशियल असेंबली का, उसका बाइकआउट कर दिया। इससे क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो गई का सामना करना पड़ा। फजल इलाही चौधरी जो थे वो 5वें प्रेसिडेंट थे और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे। यानी बताना सिर्फ ये है, और मिनिस्टर हेल्थ और एजुकेशन के भी बताना आपको ये है। ही वाज फ्रॉम गुजरात primarily. He was very humble. He was lawyer by profession. He was very silent sort of politician, a very seasoned politician, or he knew the statecraft. He was well versed with the governance issues. और ऐसा ही आदमी भुट्टो साहब के साथ जो है वो चल सकता था एज रियासत का सरबराह। अब कुछ बातें मैं करूंगा अलाइंसेस के हवाले से, मिलिट्री अलाइंसेस के हवाले से, और पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जो है ये 9 पार्टियों का अलायंस था, और ये प्राइमरीली जो था ये इसका जो एपरेंट नारा था वो ये था। एपरेंट नारा जो उसका था वो था कि उनका जो बुनियादी मकसद था वो था उनका जो बुनियादी मकसद था वो था कि भुट्टो को कैसे मंजरनामे से हटाया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि पीएमए वाज apparently an alliance that was instrumental to bring Islamic order in Pakistan, but hidden agenda was to remove Bhutto from the political scene. तो पीएनए ने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, 9 पार्टियां इकट्ठी हुई और एक सिंबल, और सिंबल क्या था, ग्लोब, हल का उनका जो वो निशान था। तो उसके जरिए जो है उन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़ा। यानी सारे वोट जो है वो 9 पार्टियों के वो एक जगह जो है वो इकट्ठे हो गए। लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने आपको भी कहा था कि कौमी असेंबली का इलेक्शन जब हुआ तो उन्होंने इसको कहा कि ये इलेक्शन जो है वो रिग्ड है और हम जो है वो इसको नहीं मानते, और उन्होंने बाइकआउट कर दिया प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फिर उसके नतीजे में जो है वो आपने देखा कि मार्शल लॉ जो है वो लगा। तो पीएन में आप ये कह सकते हैं कि पीएन में आखिर उसकी जो एक जो रिजल्ट था वो फिर एंड रिजल्ट जो है उसका वो क्या निकला, वो मार्शल लॉ की सूरत में जो है वो निकला कि पाकिस्तान में कोई निज़ाम मुस्तफ़ा तो लाने से रहे, लेकिन मार्शल लॉई निज़ाम जो है वो जरूर जो है उसको ये ठीक हो गया। फिर देन
एक और अलायंस बना पाकिस्तान में, MRD. MRD, as it is written on the slide, Movement for the Restoration of Democracy. बहाली जमहूरियत की तहरीक, बहाली जमहूरियत की तहरीक. This is very important. तो बहाली जमहूरियत की तहरीक, तो बहाली जमहूरियत की तहरीक जो थी वो उसमें बहुत सी कॉमप्रस पार्टियां इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक पार्टीज लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कब बहुत effectively they voiced against General Mohammad Ziaul. It was against General Mohammad Ziaul. इनका डिमांड क्या था? इनका एक सिंगल डिमांड था, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, बहाली जमहूरियत, और इसके नाम से जाहिर है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री निज़ाम को की बहाली, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री निज़ाम की जो है वो बहाली, ये इसका जो एक बुनियादी जो मुतालबा था. अब इसका जो जोर था प्राइमरीली वो था आपका सिंध में इसलिए था कि भुट्टो साहब जो थे वो प्राइमरीली उनका ताल्लुक सिंध से था और उनको फांसी हो चुकी थी. सिंधीज डिड नॉट लाइक इट, एंड सिंधीज इसीलिए कहते हैं आज भी सिंधी कि भुट्टो जिंदा है. तो वो उनकी एक अकीदत है भुट्टो की पर्सनालिटी के साथ. तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में ये तहरीक बड़ी कामयाब थी और जनरल ज़िया अंडर प्रेशर आए और उन्होंने क्या किया कि इलेक्शंस तो करवा दिए, लेकिन इलेक्शंस जो हैं वो नॉन पार्टी बेस्ड उसमें करवाए. यानी आप इलेक्शन तो लड़ सकते थे इंडिविजुअल की कैपेसिटी में, आजाद उम्मीदवार के हैसियत से, पार्टी के सिंबल पे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते. बेनजीर भुट्टो वॉज वेरी यंग, शी वॉज लीडिंग पीपल्स पार्टी. मेरे पास उनकी किताब पढ़ी है यहाँ पे, रिकंसिलिएशन, और मैंने पढ़ी कई साल पहले. तो रिकंसिलिएशन में उन्होंने लिखा है कि ये उनकी गलती थी, ये उनकी गलती थी कि उन्होंने इलेक्शंस का बायकॉट किया और वो स्पेस जो है वो खाली रह गई. किसके लिए? जमात इस्लामी के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट की जमात थी उसके लिए खाली रह गई. तो पीपल्स पार्टी आउट हो गई सीन से, और फिर उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये उनका एक पॉलिटिकल संगीन गलती थी. स्पेस जब आप छोड़ेंगे तो कोई और फिल करेगा. फिर जमात इस्लामी और PML ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कंधा दिया इसको, ज़ियाउल हक को, की हुकूमत को, और मोहम्मद खान जुनेजो को सिंध से यानी इलेक्ट करवा कर तो प्राइम मिनिस्टर बनाया ताकि सिंधी सेंटिमेंट्स को कुछ ना कुछ पैसिफाई जो है वो किया जा सके. लेकिन आप देखें कि एक अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था. तो आप देखें कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का पाकिस्तान में जितने हुक्मरान रहे हैं, लोगों का ये ख्याल है कि मोहम्मद खान जुनेजो से ज्यादा शरीफ शख्स और प्रिंसिपल शख्स शायद ही आया हो. लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो साहब के साथ भी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का गुजारा नहीं हो सका, और उनको भी 58(2)B को यूज करके तो उनको भी रुखसती का परवाना देके सिंधड़ी वापस भेज दिया गया अपने गांव. उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया गया. Another alliance was IJI, Islami Jamhuri Ittihad. It was formed against PPP 1988. It was also a 9-party alliance. This alliance primarily prevailed in Punjab. From this platform, Sharifs
or Nawaz Sharif emerged as a powerful leader of Pakistan. अब रेलेवेंस क्या है? पीएनए और अगर आईजीआई में आप रेलेवेंस ढूंढें तो कॉमनैलिटी 9 पार्टीज हैं, 9 पार्टियां वो थी, 9 पार्टियां ये है। वो भी पीपीपी के अगेंस्ट अलायंस था, ये भी पीपीपी के अगेंस्ट अलायंस था। वो भुट्टो साहब के खिलाफ था, ये बेनजीर भुट्टो के खिलाफ था। ठीक हो गया। और इस पे बहुत सी स्टोरियां हैं, अगर आप यूट्यूब में देखें जनरल हमीद कुल का इंटरव्यू तो आपको पता इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद क्यों बनी थी और किसने बनाई थी। अलायंस फॉर द रेस्टोरेशन, इत्तेहाद बराए बहाली जमहूरियत, ये यूनिक अलायंस था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। हाउ इट वाज अ यूनिक अलायंस ऑफ आवर पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे के खिलाफ रही जब से ये दोनों मंजरनामे पे आई, तो ये एक दूसरे के सख्त गिर रवैया इन्होंने इख्तियार किया। बट ये एक यूनिक अलायंस के मुशर्रफ साहब इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि ये दोनों पार्टियां जो दाएं और बाएं बाजू की पार्टी थी, जिन्होंने दो दो मरतबा एक दूसरे की हुकूमतें गिराई, वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और रीजन क्या थी? कॉमन एनिमी, एंड हिज नेम वाज जनरल परवेज मुशर्रफ। तो ये इनका जो मुतालबा था वो सिंगल पॉइंट एजेंडा था, बहाली जमहूरियत। जिस तरह एमआरडी थी बहाली जमहूरियत की तहरीक, वो जियाउल हक के खिलाफ थी, और एआरडी जो थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। कॉमन जो था वो ये था जमहूरियत। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मामलात हैं वो कैसे हैं। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आपको पता है आज़ादी के बाद जो हमने इनहेरिट किया वो था आपका वो आपका था 1935 का एक्ट विद सर्टेन अमेंडमेंट्स। तो हमने उसको एज एज इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया विद सर्टेन अमेंडमेंट्स। लेकिन बाद में जो है फिर हमने उसको 56 का आइन लेकर आए, नौ, और उसके साथ काम चलाया। इंडिया ने इससे पहले आइन जो है वो अपना बना लिया। ठीक हो गया। सो इन्होंने क्या किया कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन 56 में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन 58 में हमने इसको एब्रोगेट कर दिया क्योंकि मार्शल लॉ लग गया। ठीक हो गया। तो मार्शल लॉ लगने की वजह से जो है वो हमारा मामला जो है वो फिर गड़बड़ हो गया, और इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म के यानी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो है वो लीड करेगी गवर्नमेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होंगे, यानी वो सिंबॉलिक एक रियासत के सरबराह होंगे। यूनिकैमरल पार्लियामेंट यानी एक हाउस होगा, जिस तरह एक हाउस मीन्स के जो आबादी के तनासब होगा उसी के हवाले से होगा। तो इसमें इन्होंने फार्मूला ऑफ पैरिटी अपनाया। ये देखे ना, फार्मूला ऑफ पैरिटी 150 और 150, तो ये 300 सीटें, यानी 150 सीटें ईस्ट पाकिस्तान, 150 सीटें वेस्ट पाकिस्तान, और 10 सीटें जो थी वो स्पेशल सीट्स थी, यानी माइनॉरिटीज की सीट्स थी। ये अब इस पे खुश नहीं थे बंगालीज। बंगालीज वर नॉट हैप्पी विद दिस पैरिटी का फार्मूला, क्योंकि उनका मौकफ ये था कि भाई हमारा तो आबादी 54% है, यानी ज्यादा आबादी है, तो ये किस तरह पैरिटी है? ये पैरिटी तो नहीं है। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो
62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अयूब खान का, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अयूब खान की जो सियासी एक देखिए एक एक जो आपका हर एक पर्सनालिटी का अपना एक परसेप्शन होता है. एक सिविल सर्वेंट का अपना एक होता है. आई एम अ सिविल सर्वेंट फॉर लास्ट 24 years. I have my own I have my own understanding. Military journals are having their own understanding, and politicians have different. Academicians are having different. So, constitution is a very tricky subject. अयूब खान ने 2 की कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन तो बनाया और जस्टिस शाहबुद्दीन को उसका हेड बनाया और उन्होंने रिपोर्ट दी, लेकिन प्राइमरीली जो रिफ्लेक्ट करता था वो क्या करता था, वो रिफ्लेक्ट करता था आपका वो रिफ्लेक्ट करता था आपके उसको उसके अयूब खान के ख्यालात को. अब अयूब खान कौन सा कोई पॉलिटिकल साइंस का एक प्रोफेसर था या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था या बैरिस्टर था या पार्लियामेंट में इलेक्ट होके कई मरतबा आया था. वो he was a military general. So he wanted a system कि जिसमें सारे इख्तियारात एक जगह मुर्तकिज हो जाएं. इससे पहले तो चलो 56 के आईन में पार्लियामेंट्री भी था और जिसमें प्रेसिडेंट का भी रोल था, कुछ चीजें उसके पास थी. यहाँ पे ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटी रेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, और इसी की वजह से तो पाकिस्तान टूट गया. आपने देखा सारी अथॉरिटी तो बंगाली बेचारे वो इसी तरह दुत्कारे गए, और इसी दौरान में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि गालिबन उन्होंने गुड बाय कहना है. यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यूनिकैमरल होगी 56 के आईन में. बाइकैमरल तो 73 में आई. 2 ऐवान जिस तरह आज है कौमी असेंबली और सेनेट. फेडरल सिस्टम विफाकी निज़ाम होगा, यानी सेंटर होगा और फेडरेटिंग यूनिट होंगे, सेंटर होगा और सूबे होंगे, और इख्तियारात की तकसीम होगी. इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स एज एन इलेक्टोरल कॉलेज. ये सिस्टम इस तरह बेसिक डेमोक्रेसी पे बेसिकली खड़ा है. उन्होंने कहा कि टर्म जो है वो असेंबली की वो 3 साल होनी चाहिए, और नॉर्म ये होना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से हो तो स्पीकर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से होना चाहिए और वाइस वर्सा, ताकि कुछ ना कुछ तवाज़न जो है वो ताकत का वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान. अयूब खान साहब के वक्त में एक और सियासी डेवलपमेंट हुई, और वो पॉलिटिकल पार्टीज के एक्ट की पैसेज है. पॉलिटिकल पार्टीज के एक्ट की पैसेज है. ठीक हो गया. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक्ट है, मतलब वो क्या करता है पॉलिटिकल पार्टीज का एक्ट. वो प्राइमरीली यानी जो एक किस तरह समझाओ, सियासी पार्टियों का ज़ाब्ता इखलाक, सियासी पार्टियों का ज़ाब्ता इखलाक कि वो क्या होगा. आप देख रहे हैं आजकल सियासी पार्टियां, अगर आप अभी इस वक्त टीवी टॉक शोज चल रहे होंगे तो कोई ना कोई किसी से लाउड बदतमीजी कर रहा होगा, अल्फाज का चुनाव. ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टीज को कोई या ब्यूरोक्रेसी की तरह चलाना चाहिए, सलूट करें या एक दूसरे को बहुत ज्यादा मोहतात रहें. नहीं, क्रिटिसिज्म करें, बातचीत करें, लॉजिक के साथ करें, शाइस्तगी के साथ करें. तो ये जो उस वक्त उन्होंने फील किया कि एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक एक्ट भी आना चाहिए जिसमें आपका एक जो ज़ाब्ता इखलाक है उसको भी जो है वो उसको एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. 73 कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट,
इस parliamentary form में the Wazir Azam, elected Wazir Azam and his cabinet is supposed to run the affairs, decision-making processes. Federal in nature, state in nature, federal. Federal means a center and the federating units, or federal means not a decoration piece. Federal means where provincial autonomy will be honored. Federal means where distribution of power will be written in the constitution, or that will be respected. Bicameral legislature 47 से 73 तक यूनिकैमरल थी, मैंने आपको बता दिया, और माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, 10 सीटें जो थी वो रिजर्व थी. तो ये फर्स्ट टाइम जो बोगरा फार्मूला में भी लिखा हुआ था कि बाइकैमरल होनी चाहिए, तो वो बाइकैमरल जो है वो पहली मरतबा 73 के आईन में आई. इन्हें सेनेट का कॉन्सेप्ट, एवाने बाला का कॉन्सेप्ट वो 73 के आईन में. 5 साल जो है 5 years का टर्म जो है वो इन्होंने कहा होगा. अब जो इस हमारी डिस्कशन का आखिरी पार्ट है वो है मीसाके जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो आप सुनते हैं. रिलेशंस, सिविल इदारों के और मिलिट्री के ताल्लुकात जो हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए. इसके टोटल जो पॉइंट्स थे, पार्ट्स तो इसके 4 थे, जिस तरह मैंने आपको बताया ये 4 पार्ट्स थे इसके, ये 4 पार्ट्स थे और इसके 36 पॉइंट्स थे टोटल. ये एक डॉक्यूमेंट थी हमारी हिस्ट्री की, बिकॉज दीज 2 पॉलिटिकल पार्टीज वर वेरी मच अगेंस्ट ईच अदर, और 2 times इन्होंने 2 मरतबा जो है हुकूमतों को जो है वो खत्म कर किया एक दूसरे की, और यहाँ पर जो है वो इकट्ठे हो गए. तो हम वो रीजंस देखेंगे कि वो रीजंस क्या थी इनके इकट्ठे होने की. इट वाज एन अटेम्प्ट टू अचीव द आइडियल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो इन्होंने कहा कि हम इस पे इसलिए मुत्तफिक हैं कि हम पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री जमहूरियत की बहाली चाहते हैं 73 के आईन की एसेंस के मुताबिक, नॉट सेमी प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल. क्योंकि वजीर आजम तो मुशर्रफ के वक्त में भी था, लेकिन असल पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास थी. उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री सिस्टम की बहाली है. एसेंशियल्स फॉर डेमोक्रेसी और आइडेंटिफाइड. क्या लवाजमात होंगे डेमोक्रेसी के लिए, क्या चीजें जरूरी हैं. टॉलरेंस, फ्रीडम, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ठीक हो गया, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये एसेंशियल्स हैं. एन एजेंडा, मैनिफेस्टो और आइडियल और पॉलिटिकल स्लोगन. मेरे ख्याल में ये सब कुछ था. ये एजेंडा भी था, ये आपका मैनिफेस्टो भी था, और ये आइडियल भी था, और एक सियासी नारा भी जो था, आप उसको कह सकते हैं. It was an attempt to redefine relations of different actors. ये एक कोशिश थी कि डिफरेंट एक्टर्स जो हैं डेमोक्रेसी में, अब एक्टर्स कौन से हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्टैंडिंग कमेटियां हैं, ठीक हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है. तो इनके जो रिलेशंस हैं उनको कैसे रीडिफाइन किया जाए ताकि इनको मौसर बनाया जा सके. Why Charter of Democracy? Because individually it was not possible to bring change. ये मुमकिन नहीं था दोनों के लिए कि वो इनफरादी तौर पे कोई तब्दीली जो है वो ला सके, क्योंकि मुशर्रफ साहब बहुत ताकतवर थे, उनको हिमायत हासिल थी फौज की और अमेरिका की. तो ये बड़ा मुश्किल था कि वो उनको डिसलॉज किया जाता. बोथ वर इन एग्जाइल. दोनों जो हैं वो थे
both of them were in exile, जलावतनी में थे दोनों, मजबूर थे, को बड़ा अरसा हो चुका था अपना मुल्क छोड़े हुए, और टाइम कंस्ट्रेंट, बोथ वर इन 50s, दोनों जो थे वो उनके जो उम्रें थी वो तेजी से जो है वो गुजर रही थी, तो उन्होंने ये समझा कि जिंदगी के दिन बहुत अरसा गुजर गया उनको लंदन और दुबई और सऊदी अरेबिया में, तो उनके पास वक्त कम था। और फिर बेनजीर के पास तो आपने देखा कि वो खुदकुश हमले में शहीद हो गई, उनकी हलाकत हो गई। Both did not complete tenure in office. Confrontation was not the solution. दोनों ने दो दो मरतबा हुकूमतें की, और फिर इवन नवाज शरीफ ने तो तीसरी मरतबा भी की, और उन्होंने अपने टेन्योर उनको कंप्लीट नहीं करने दिए। तो उन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है, कि वो अपना जो एजेंडा लेकर आते हैं तो उनको वो पूरा करने दिया जाए। बार ऑन थर्ड टाइम प्रीमियरशिप, नवाज शरीफ डिराइव्ड बेनिफिट। तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने पे 17वीं तरमीम में पाबंदी थी, तो अब उसको अनलॉक करने के लिए जरूरी था कि दोनों इकट्ठे होते, और फिर 18वीं तरमीम में उसका अनलॉक किया गया और इस पर पाबंदी जो है वो उठा ली गई। COD अप्रूव पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक हो गया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस चीज का सबूत है कि आपका सियासत जो है पाकिस्तान में वो आइडियोलॉजिकल नहीं है, बल्कि गरज पर बेस्ड है। दोनों एक दूसरे के सब खिलाफ थे, दो मरतबा हुकूमतें खत्म की, लेकिन जब गरज यहाँ पे इकट्ठी हो गई तो दोनों जो है वो इकट्ठे हो गए। 2006 में इंडस्ट्रीज की तबाही, बिल्कुल इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस थी आपकी और इन्वेस्टमेंट जो थी वो डिस्करेज हो गई। टू ब्लॉक द मिलिट्री टेक ओवर्स, के मिलिट्री का रास्ता रोकना है, तो दोनों ने इकट्ठा होना है, क्योंकि अभी पीटीआई लाइमलाइट में नहीं थी मुशर्रफ साहब के बाद, असल पार्टियां ये थी, और जो उन्होंने अपनी एक प्रॉक्सी बनाई हुई थी वो PML-Q थी। COT is actually realization of the importance of opposition. मैंने आपको बताया कि जो भुट्टो साहब का ऑपोजिशन के साथ रवैया था बड़ा हॉस्टाइल था, इनडिफरेंट था, इनह्यूमन था, और बेनजीर का नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा था, और नवाज शरीफ का भी बेनजीर के साथ ऐसा था, और दोनों का एक दूसरे के साथ रवैया ठीक थी। तो उन्होंने कहा कि अगर अब हमें मौका मिला तो हम अपोजिशन को डीप इम्पोर्टेंस देंगे, टू मोबिलाइज द मासेस, लोगों में तहर्रुक पैदा करने के लिए, क्योंकि पार्टियां जो हैं वो पर्सनैलिटीज ओरिएंटेड है। अब पीटीआई देख लें तो इमरान खान है, PPP देखे तो भुट्टोज हैं, और M देखे तो शरीफ हैं। ये लोग पर्सनैलिटीज के पीछे जाते हैं। जब वो बाहर चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता जब उनको अरसा दराज हो गया तो लोगों की दिलचस्पी सियासत में कम पड़ गई। टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट के मुशर्रफ के ऊपर प्रेशर डालें और अपना बार्गेनिंग वैल्यू बढ़ाएं, क्योंकि जब दोनों इकट्ठे हो गए फिर तो पलड़ा भारी हो गया इनका, और मुशर्रफ को बड़ा टफ टाइम दिया। फिर NRO हुआ, फिर बेनजीर की वापसी हुई, इलेक्शंस हुए, गिलानी साहब की हुकूमत आई, तो ये सारे बातें ARD और COD के बाद हुई। In their absence, parties badly suffered, as I told you. कि क्या था इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, था क्या इनकॉर्पोरेटेड कि पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो वापस कर दी जाए 73 के आइन के मुताबिक। जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स उन्होंने 7वीं तरमीम में अपने पास ट्रांसफर कर दी थी आईनी अमेंडमेंट के जरिए, उन्होंने कहा कि ये हम वापस जो है वज़ीर आज़म को लौटा देंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और ये इख्तियार उसका होगा कि
वो अपॉइंट करे गवर्नर्स को, तीनों अफवाज के चीफ्स को, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी को। तो 17वीं तरमीम में ये जो निचली बुलेट है वो ये कहती है कि वो हर चीज में डिपेंडेंट था कि प्रेसिडेंट से जो है वो कंसल्ट करे। तो ये चीजें जो है 18वीं तरमीम में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के एसेंस के मुताबिक इन्होंने खत्म कर दिया। और आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं 18वीं तरमीम के बाद। अबॉलिशमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने कहा कि अगर हम पावर में आ गए तो हम क्या करेंगे कि abolish the abolish the national security council। हम जो कौमी सलामती काउंसिल है उसको क्या कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। ठीक हो गया। तो क्यों, उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनका ये मौकफ था कि डेमोक्रेसीज में ये जो असल काम है ये है आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट का, कैबिनेट का, वजीर आजम का, वो डिसाइड करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है। हाँ, हम कंसल्ट करेंगे जर्नलों को या मिलिट्री को, बट वील कंसल्ट देम। ठीक हो गया। तो ये 13 रुकनी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, प्रेसिडेंट उसका हेड था, और प्रेसिडेंट आपको पता है कि वो मिलिट्री से थे मुशर्रफ, प्राइम मिनिस्टर उनके हैंड पिक्ड थे शौकत अजीज साहब, स्पीकर भी उन्हीं के काफिले के थे, और लीडर ऑफ अपोजिशन फजलुर रहमान थे, वो आते नहीं थे, उनके ऊपर भी इल्जाम है कि उनके साथ मिले हुए थे। चेयरमैन सेनेट वो भी उन्हीं के मोहम्मद मियां सुमरो, मिनिस्टर्स अकरम दुरानी सारे काफिले के थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी और फौजी तीनों। तो ये एक किस्म का एक प्री प्लान्ड एक काम था। तो उनका ये मौकफ था कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे कैबिनेट की डिफेंस डीसीसी, डिफेंस कैबिनेट कमेटी, दिफा की जो ज़ेली कमेटी है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, और उसको रिप्लेस करेंगे हम डिफेंस की कैबिनेट कमेटी के साथ। और ये भुट्टो साहब ने बनाई। तो क्यों, वजह क्या है? उन्होंने कहा कि जो फैसले करने का इख्तियार है, मशवरा जरूर लें इनसे, लेकिन जो फैसला करेंगे वो जमहूरी तौर पे जो इलेक्टेड लोग हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम पावर में आ गए तो हम क्या करेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट को जो है वो एबॉलिश कर देंगे। कॉन्करेंट लिस्ट आपको पता है कि 1973 में हुकूमत पीपीपी की थी, भुट्टो साहब की थी। कॉन्करेंट लिस्ट जो है उन्होंने कहा कि देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है कि जिसमें फॉर इंस्टेंस आप फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दें। तो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर डाल दिया आपने तो फिर आप इसको कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी उस पर डिपार्टमेंट बना सकती है, मिनिस्ट्री, और प्रोविंशियल भी बना सकती है। फेडरल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है उस पर, और सूबाई हुकूमत भी बना सकती है। लेकिन अगर क्लैश आ जाए दोनों का तो फिर फेडरल प्रिवेल करेगा। तो इट मीन्स कि असल ताकत जो है वो तो फिर फेडरल की है। तो इससे सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती थी, और डिससेटिस्फैक्शन जो है वो सूबों के दरमियान में जो है वो बढ़ने का बाइस बनी। तो छोटों सूबों की जानिब से एक स्ट्रॉन्ग मुतालबा था कि इसको जो है वो आप खत्म करें, यानी ठीक हो क्या, कि इसको आप खत्म करें कॉन्करेंट लिस्ट को। और फिर यही हुआ, और उसको जो है खत्म किया गया। ठीक हो क्या, एबॉलिश कर दिया गया 18वीं तरमीम में कॉन्करेंट लिस्ट को। लेकिन देखिए, मैं आपको खुल के बताऊं कि कॉन्करेंट लिस्ट की एबॉलिशमेंट पे मैं ज़ाती तौर पे बहुत इसकी हिमायत करता हूँ,
اور اس پہ بہت خوش ہوں. لیکن کیا ہمارے چیف منسٹرز 18ویں ترمیم کے بعد جو آئے کیا وہ کمپیٹنٹ تھے؟ کتنے چیف منسٹرز اس پہ سے کمپیٹنٹ تھے جو اپنے صوبے میں اس کے لیے نئے ڈپارٹمنٹس بناتے؟ کیپیسٹی بیوروکریسی کی ہوتی اور ول اور کیپیسٹی دونوں ہوتی. وہ جو ہے میرے خیال میں وہ چیز ہمارے ہاں تھوڑی سی کمزور ہمیں نظر آئی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بنائیں گے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے نا جی وہ آپ دیکھیں کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے جرمنی سے لیا. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان میں جو کورٹس ہیں وہ اوور برڈنڈ ہیں. 2 ملین کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں کورٹس میں پینڈنگ ہے جس میں سے 45,000 جو ہیں یا 49,000 وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک ہوگی ایپلیٹ کورٹ جو ابھی ہے اور دوسری ہوگی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جہاں پر سیاسی معاملات جو ہیں وہ وہاں پر ہم لے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ سیاسی معاملات کو ہم وہاں پر یہ لے جائیں گے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو ان پہ برڈن کم ہو جاتا. لیکن چودھری افتخار صاحب چونکہ بہت طاقتور شخصیت تھے اس وقت تو غالباً یہ ان کے ڈر کی وجہ سے جو ہے ان کے اسرٹیو ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو امپلیمنٹ جو ہے اس کو نہیں کر سکے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہم نہیں بنا سکے. بنانی چاہیے تھی. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ ناکام رہے اس کو بنانے میں. اگر بنا دیتے تو غالباً پاکستان میں تو ہر وقت سیاسی نوعیت کے کیسز بہت ہوتے ہیں. تو اگر کیا کہتے ہیں اگر بنا دیتے تو آج لوگوں کو جو یہ ایپلیٹ کورٹ والا کام ہے تو وہ وہاں پہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اس کو جو ہے اس طرح نہیں امپلیمنٹ کر. ڈیموکریسی کمیشن انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو ہم ڈیموکریسی کمیشن جو ہے وہ بنائیں گے. اور ڈیموکریسی کمیشن جو ہے اس کا جو بیسک کام تھا وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کرنا. یعنی ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں جائیں, اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں, لیبرس کو موٹیویٹ کریں, ویمن امپاورمنٹ کریں, اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں. تو وہ چیز جو ہے یہ بھی ڈیموکریسی کمیشن بھی لانے میں یہ میں کیا کہوں ناکام رہے یا ان کا وہ ارادہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک ایسا کام تھا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. جس طرح کریکولم ہے پاکستان میں تو وہ اس کو کیسے ڈیموکریٹک بنایا جائے. یہ کریکولم آپ دیکھیں جو نصاب ہے. اب آپ دیکھیں ہمارا نصاب میرا ایک آرٹیکل ہے ایکسٹریمزم اینڈ بکس. تو آپ اس کو دیکھیں کہ جو پاکستان میں کریکولم ہے وہ آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ آپ کو زیادہ اس میں ایکسٹریمزم کی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گی آپ کو. ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹی فور ٹینک, جی فور گن. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ آپ کو
नजर आती हैं, T4 टैंक, G4 गन और फलाना गजवा, फलाना पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो ये बच्चे है ना, वो वॉरफेयर की तरफ जो है वो आपको ज्यादा एनक्लाइन नजर आते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है ये मामला। और फिर आप इसको देखें कि आप इसको देखें कि अगर आप इसको वोकेबलरी को डेमोक्रेटाइज करना चाहें तो आप डी फॉर डेमोक्रेसी कर सकते हैं, बी फॉर बैलेट बॉक्स कर सकते हैं, बी फॉर वोट कर सकते हैं, बी फॉर प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, बी फॉर प्रेसिडेंट कर सकते हैं, पी फॉर पार्लियामेंट कर सकते हैं। लेकिन हम गालिबन अपने मीडिया के कंटेंट्स के जरिए, अपने करिकुलम के जरिए हम गालिबन इसको करने से कासिर रहे हैं। तो इसको एक होलिस्टिक अप्रोच का नाम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सिर्फ एक दिन इलेक्शन करवाने का नाम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम पावर में आ गए तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करेगा तो उसके लिए हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे। तो वो भी वो इस तरह की कोई चीज नहीं ला सके। और अगर ये ले आते तो गालिबन आज सियासी नक्शा जो है वो गालिबन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। ठीक हो गया। COD is not only important in constitutional study, but COD is important when it's our topic that political evolution. सियासी इर्तकाई अमल का एक हिस्सा वो आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो आपकी 18th अमेंडमेंट भी आपकी प्राइमरीली उसके साथ लिंक है। सो दैट्स व्हाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम academic or theoretical aspect. ड्यू रोल ऑफ ऑपोजिशन, इन्होंने कहा अगर हम पावर में आ गए तो हम एक ऑपोजिशन का जो एक ड्यू रोल है उसको एक्नॉलेज करेंगे। ऑपोजिशन मीन्स द गवर्नमेंट इन वेटिंग और शेडो गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा कि हम जो गलतियां की हमने दो मरतबा हुकूमतों के दौरान, इसको हम नहीं दोहराएंगे और हम अपोजिशन को एक ड्यू रोल देंगे। और यही हुआ कि जब पहली मरतबा जब पीपीपी की गवर्नमेंट बनी मुशर्रफ साहब के दौर के बाद और गिलानी साहब की गवर्नमेंट बनी, तो पहली मरतबा पाकिस्तान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो सरबराही है वो अपोजिशन के लीडर को दी गई। वो चौधरी निसार अली खान साहब थे जो एक सख्त गिर ख्यालात के हामिल आदमी है और उनको तो इससे पहले ये हिज़्ब इक़्तिदार के लोगों को दी जाती। फिर चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है या इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट है या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, आज उसके लिए या चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। दीज ऑल incorporations had been made, insertions had been made in through 18th amendment. इन्होंने कहा कि हम सियासत में जो आर्मी का अमल दखल है, मिलिट्री का हिस्टोरिकली, उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस को रीडिफाइन करेंगे। इनका कोई रोल नहीं होगा एजेंसीज का या इदारों का, और ये उनकी मदद से ताकत में नहीं आएंगे, अवाम के वोट के ऊपर डिपेंड करेंगे। और जो ऑफिस है चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी का, वो एक रोटेशन के जरिए जो है वो कभी आर्मी को, मिलिट्री को और फिर एयरफोर्स को और फिर नेवी को, ताकि जो कोऑर्डिनेशन का ऑफिस है ताकि तीनों फोर्सेस के दरमियान रोटेट किया जाए। लेकिन इसको भी ये अभी तक
نہیں ہو سکا اور وہ ملٹری کے پاس ہے، آرمی کے پاس ہے. اور انہوں نے کہا کہ ڈیفینس کا بجٹ جو ہے دیٹ ویل ڈسکس، تو وہ اس میں ڈسکشن ماضی کی نسبت ہوتی ہے. آخری بات، the factors affected the implementation of charter of democracy. ایک تو اسیسینیشن ہے بینظیر بھٹو کا، کیونکہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر تھی، وہ اس کی سگنیٹری تھی، تو ان کی موت کا ہونا یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا اس کے لیے. اور اٹ واز ڈیکلیریٹری ان نیچر، لیگلی ناٹ بائنڈنگ. یہ ایک ڈیکلیریشن تھی، یہ ایک اعلانیہ تھا، یہ کوئی قانون تو نہیں تھا، کوئی آئین تو نہیں تھا کہ آپ نہیں امپلیمنٹ کریں گے تو کوئی سزا ہو جائے گی یا پوچھ گچھ ہو جائے گی. وہ ڈیکلیریٹری، نو ڈیڈ لائن، کوئی ٹائم لائن نہیں، نو امپلیمنٹیشن میکنیزم. ہو ول ڈو واٹ، ہاؤ، وین. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں مسنگ ہوتی ہیں ہمارے پلاننگ میں، یہاں پہ بھی مسنگ تھی. جو ان کو سوٹ کرتا تھا اینڈ نان کوپریشن بٹوین دا ٹو میجر پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ پیپلز پارٹی پاور میں آ گئی تو ان کو وہ جو ہے ایک اقتدار مل گیا اور یہ اپوزیشن میں آ گئے. وہ جو کوپریشن ایکسپیکٹڈ تھا وہ اس طرح مٹیریلائز نہیں ہوا. آپ کا ساجد جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بیلنس جو ہے سپریمیسی بٹوین جوڈیشری اینڈ، اس کے لیے کوشش کی گئی کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ آئین میں جو ترامیم ہوئی، کچھ 18ویں اور پھر بعد میں بھی کچھ ترامیم میں، اس میں کوشش کی گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ کا کویشچن ہے بڑا اچھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہو سکی. اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے، میرا اپنا خیال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں ایپیکس کورٹس میں، خاص طور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں، وہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اور زیادہ کمپیٹیٹو ہونی چاہیے. اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ وہ اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ اس میں انویسٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنے قوانین میں اور اپنے انرجیز میں. اگر جج کا جو درجہ ہے وہ خدا کے بعد کا ہے، تو اگر جج آنیسٹ نہیں ہوگا، پولیٹیکلی الائنڈ ہوگا، کریکٹر وائز ٹھیک نہیں ہوگا، اور وہ ڈیسیجنز فیئر لیس ہو کے نہیں دے گا، تو میرے خیال میں وہ جو کویشچن آپ کر رہے ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکیں گے. لیکن ماضی کی نسبت بہت بہتری آئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جتنا بگاڑ پیدا ہو گیا اس کو کریکٹ کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے. آئی ایم ویری گریٹفل، تھینک یو ویری مچ.